जय हिंद, जय वेटरन्स इंडिया। थोड़े इंतज़ार करना पड़ेगा, मुझे लगता है कुछ लोग जुड़े तो। आई थिंक ओके, कुछ लोग जोड़ना शुरू हो गए हैं। मैं अशोक कुमार लेंका, ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट श्री बी के मिश्रा, टुडे लाइव to speak about the developments in the sports wing. I could see our Vice President, Mr. M.B. Singh Chauhan, is waving at me. I can invite him. Please come in camera, not a problem. We can discuss many things. अभी हमारे नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर प्रेम शंकर शुक्ला बड़े बखूबी तरीके से अपने पॉइंट्स उन्होंने रखा है. इट वाज रियली फैंटास्टिक टू वॉच डॉक्टर प्रेम शंकर शुक्ला live, and suddenly I think he was having some network issue, so he was not live for a long time. And I thought, on the request of our program director, Mr. Rambir Sharma, and then I thought to just come for 10-15 minutes and brief about the sports wing. It was really, it's like awesome opportunity today I got to speak some 15 minutes because of Dr. Prem Shankar Shukla could not go up to 9:30. I thought I just come in and speak to you, which will be really enlightenment to you. Maybe many things you do not know what the sports wing is doing. जब ओके 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 डॉक्टर एम बी सिंह जी, जय हिंद. Not a problem. Very nice that you joined while traveling also. And Jai Hind, Sujata Chandrasekhar madam, I could not attend your phone today. I am really little busy with the sports wing. Don't mind. जय हिंद राजेंद्र पांडे साहब, आपने बड़े अच्छे इंसान डॉक्टर प्रेम शंकर शुक्ला को सौंपा है वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स विंग के लिए. जय हिंद रामवीर शर्मा साहब. और जय हिंद बालकृष्ण पांडे सर. Dear friends, it's really nice to always speak on the forum of Veterans India, because you all are really awesome people. Whenever Veterans India live is on, you all will be like permanent people to join. I really feel honored that you are always ready. Whenever the live is on, you are all always on. That's a great thing actually, and I really love to have you in the live. And please share it, because I am going to disclose so many good things, good news is about what Veterans India Sports Wing. Wonderfully, because of all of your blessings, Veterans India Sports Wing is doing wonderful. And I think very soon our Veterans India will be a elite category sports organization in the India's map, which India, since the independence, never had it. The vision is great, and with the support of our visionary president, Sri Binay Kumar Misra ji, we are building it very minutely and with our soul and heart, and definitely with the support of all of you. It is going to be an awesome organization and in building nationalism and patriotism.
सी इट्स ऑल अबाउट व्हेन जब देश की बनाने की बात आती है, ये नहीं है कि कोई अकेला आदमी इसको बिल्ड कर सकता है। ये तो एक समूह है, और जो एक सोच को लेके चल दिया है, और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू विन ऑन दैट थॉट. The thought is nothing but nation, nation first. And when the nation comes first, nothing else is there. ये सोच, मतलब खाली सोच रखने से नहीं होगा, आपका जरा जरा में वो फैल जाना चाहिए, ब्लड एंड फ्लेश में होना चाहिए, देन ओनली ये काम करेगा. सिर्फ कहना कि हम पेट्रियट है, हम बहुत देशभक्त है, हर आदमी देशभक्त है इस दुनिया में, इस इंडिया में हर बच्चा बच्चा देशभक्त है. लेकिन इट्स ऑल अबाउट देशभक्ति को खेल से शक्ति बनाने के लिए, सशक्ति बनाने के लिए, इस सशक्तिकरण के लिए वी नीड टू वर्क. द वर्क फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टुडे ऑल्सो, with my hard work, with my visionary president's support, day and night, with the central body, closely working with central body last 3 months, even you do not know that, like not even a single break, almost like 24/7 working for last 3 months. It has got a beautiful shape of 30 states bodies have come. It's not because of Ashok Linka. It's all because of all of you, all of your help, all of your blessings, and all of your thought for the nation. I really appreciate you. But one more most important thing is that still I feel my endeavor is less, and people those who have come, जो लोग आए हैं, जो लोग हमारी मुहिम में जुड़े हैं, वो अभी तक वो चीज़, वो डायलमा में है, कहीं ना कहीं डाउट्स में है, कहीं ना कहीं उनका सोच है कि यार ये स्पोर्ट्स स्विंग काम करेगा क्या, क्या ये देश के लिए एसोसिएशन इसको अलाउ करेगा क्या. मुझे कहीं डाउट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि मैंने करीब 250 लोगों की अपॉइंटमेंट, कोई एसपी है, कोई आईएएस है, कोई ओलंपियन है, कोई अर्जुन अवार्डी है, मैंने 250 लोगों की अपॉइंटमेंट की है पूरे इंडिया में. आपको मुझे दुख हो रहा है कहने की बात है कि 25 लोग जो है वो हर दिन नहीं सोच रहे हैं काम करने के लिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं कर सकते या उनको डाउट्स है, लेकिन डाउट हमें नहीं है. हम ये कह रहे हैं आज की डेट में, मैंने आपको कई बार उनको बोला है, मुझे ये बताइए कि आप वेटरन्स इंडिया में आए हैं, आपकी मेंबरशिप फी 1500 लिया गया है, और आपकी अगर लॉस होगा तो 1500 तो लॉस होगा. अगर वेटरन्स इंडिया क्लिक कर गया तो इंटरनेशनली एक्लेम्ड हो जाएंगे आप. तो ये जो प्रोसेस है, इसको जो बनाने में प्रोसेस है, इसमें क्वेश्चन नहीं, भागीदारी की ज़रूरत है. हमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने एक वर्ड लिखा है, उसमें तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए ना. आपको डाउट इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप देशभक्त है, अगर हमारे मुहिम जो है, हमारा जो वर्ड है वो है नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म, देन व्हाट वर इज द डाउट. We have given you portfolios, we have given you the place in Veterans India, we have given the brand. Start working from the grassroots level, wherever you are. जिस गली से आप रहते हैं, उस गली से काम करना शुरू करिए. किसी ने आपको रोका नहीं है वेटरन्स इंडिया में. देश के लिए आप काम करेंगे, आप क्या सोचते हैं कोई आपको रोकेगा? बहुत बड़ी बात है ये. समझने की बात है कि आपके कोई लॉस नहीं है. आपने 35 साल, 40 साल, 50 साल अपने स्पोर्ट्स में दे दिया, सिर्फ कंप्लेन करते रहे कि फलाना एसोसिएशन ऐसा है, फलाना लोग ऐसे हैं. लेकिन वेटरन्स इंडिया ने आज अपने आंदोलन, इंडिपेंडेंस की वार छेड़ा है, इस मुहिम में आपने जोड़ा है, तो एक दिन वो गांधी जी की तरह ये जरूर सत्य होगा. क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो सिर्फ देश के लिए सोचते हैं, और उनको पता है अगर सोच अच्छा है, अगर डेस्टिनेशन अच्छा है, और रास्ता सही है, रास्ता सही हमने पकड़ा है,
एक ना एक दिन हम डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। इतनी आसान नहीं है कि 75 साल का जो फाउंडेशन आपने डाल रखा है उसको तोड़ के नई फाउंडेशन डालना है। इसमें हर एक आदमी जो है जोड़ना पड़ेगा, हर एक आदमी को स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक वॉर है, इट इज़ अ इंडिपेंडेंस वॉर, इट्स ऑल अबाउट लाइक एक आंदोलन है। इसमें आपको आपको उसमें भाग लेना पड़ेगा, आपको उसमें आके भागीदारी लेना पड़ेगा, तो आप कह सके कि फलाना आंदोलन में मैं था, मैं देखा था कैसे ये बना था। और एक दिन, इसलिए हम आपके सामने अपने कॉन्स्टिट्यूशन रख दिए हैं। और ये सिर्फ इस तरह के नहीं है कि हमने रख दिया है, हम बाकायदा उसको मानते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, इसलिए हमने रखा है। तो दिल में उतार दीजिए, अगर देश के लिए कोई जज्बा है तो काम करना शुरू करिए, क्वेश्चन नहीं करिए। अगर है आपके दिल में कुछ करने के लिए, वेटरन्स इंडिया में आपकी जगह है, आपको सही जगह दिया गया है। और आप अगर सेल्फलेस है, अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपके सामने खुली मैदान है, क्वेश्चन की कोई गुंजाइश नहीं है। कहते हैं ना, डाउट जितना करोगे उतने उस अंधेरे में जाते रहोगे। लेकिन हमें कोई डाउट नहीं है, ना हमारा प्रेसिडेंट को डाउट है, ना, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 100% लोगों को डाउट है। कुछ लोग हैं जो इस मुहिम में बिल्कुल शामिल हो चुके हैं, हर दिन हर वक्त सिर्फ वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स विंग के बारे में सोच रहे हैं। शुरुआत में मुझे भी नहीं लगा था कि मैं उसको कर पाऊंगा, लेकिन आज मुझे लगता है वो शक्ति मेरे में आ गया है, वो क्रांति हम ला सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट अ विजनरी थॉट। वो थॉट आज रूप ले रहा है। 30 स्टेट में हमारे बॉडी तैयार हो चुकी है, काम करने के लिए रेडी है सिर्फ। और हर दिन मैं 5 से 10 स्टेट के साथ बात करता हूँ, बाकायदा उनको रास्ता बताता हूँ, काम करने की वेज बताता हूँ, एंड आई गेट देम डन ऑल्सो एंड पुट देम एग्जाम्पल टू डू। एज ए लीडर ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट दैट पुट एन एग्जाम्पल, सो एन एग्जाम्पल दैट you can be a leader and you can really lead them with your leadership qualities. नहीं तो आपने क्या सीखा स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्समैनशिप का तो महीना पहला एंड आखिरी स्तंभ जो है लीडरशिप है, डिसिप्लिन है। हमने 30-35 साल का हमने सारे स्पोर्ट्समैन को लिया है, कोई मैनेजर को तो लिया नहीं इस बॉडी में हमने, जिन्होंने बाकायदा स्पोर्ट्स किया है, जिन्होंने बाकायदा देखा है स्पोर्ट्स किया है, और जिनका जज्बा है स्पोर्ट्समैनशिप का। हम चाहते हैं कि वो आए और अपनी स्पोर्ट्समैनशिप वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स विंग में दिखाए। दोस्तों, बहुत कुछ बातें मैं करने वाला हूँ, प्लीज़ अपने अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ये सो दैट मेरी जो सोच है हमारे ग्रुप में भी शेयर करें, हमारा वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स विंग का व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। हम चाहते हैं कि ये आवाज़ हर एक बंदे के पास जाए, वो कल से पीछे ना देखे और काम में लग जाए। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं कहने वाला हूँ आगे जाके, मत छोड़िएगा ग्रुप, अभी अभी तो जस्ट मैंने शुरू किया है। तो हमारे साथ बहुत बड़े बड़े दिग्गज जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जुड़ने से काम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हर आदमी हर दिन 1 से 2 घंटे दे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर देश की बात आती है, अगर सही में चाहते हो कि देश के लिए कुछ करना है, नहीं तो क्या फ़ायदा है सिर्फ पोस्ट ले लिए और घर में बैठ जाए। नहीं दोस्तों, ये देश की काम नहीं हुआ है। आप अपना काम कर लिए, बस दूसरे को दिखाने के लिए आईडी कार्ड कर लिए, नहीं करना चाहिए। करिए कोई सही काम जो सदियों याद रखे। अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक स्टूडेंट का फादर का डेथ हो गया, और मैं 2 दिन पहले ही उनसे बात किया हूँ। सो एनर्जेटिक पर्सन, रिटायर्ड फ्रॉम CRPF, ही वॉज ए कमांडेंट, एंड सडनली ही गॉट, कुछ हो गया है, कोरोना फॉलोड बाय हार्ट अटैक, ऑल दीज थिंग्स। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा का मत सोचिए, आज की सोचिए और कर डालिए। तो हम चाहते हैं कि हम हम जो है कुछ करें, देश के लिए कुछ करें। नाउ द टाइम इज कम फॉर एक्शन, नॉट फॉर जस्ट वर्ड्स। बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन
बातें तो बहुत करते हैं लेकिन एक्शन लोगों की कम है। एक्शन करिए। कहाँ पे आप रुक रहे हैं? आपके साथ आप ये नेशनल सेक्रेटरी है, कहाँ पे आप रुक रहे हैं? कौन से बातों पे आप रुक रहे हैं? हम आपके साथ हैं। बहुत सारे चीज़ें कि मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ, जो काम हम कर रहे हैं हो सकता है आपके साथ पास नहीं पहुँचा है। मैं हर दिन हर वक्त 24 घंटे 24/7 सिर्फ वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स विंग के लिए, और ये स्पोर्ट्स विंग 30 राज्य में पहुंच चुका है। सिर्फ 6 राज्यों की बाकी है। हो सकता है 15 दिन का अंदर ये काम हो जाएगा। और मुझे बहुत हैरान है कि जो वेटरन्स इंडिया के जिन्होंने पोस्ट नहीं लिया है, कई लोग स्पोर्ट्समैन हैं जो वेटरन्स इंडिया का स्पोर्ट्स विंग के लिए काम कर रहे हैं। दिन रात मुझे वो सही लोगों का नंबर दे रहे हैं, और वो नहीं है हमारे स्पोर्ट्स विंग में, नहीं है, कहीं जॉब कर रहे हैं, बोले हम नहीं आ सकते, लेकिन दिन रात मैं शुक्रगुजार हूँ उस लोगों का। वो बोलते हैं हम देश के लिए, आप देश के लिए कर रहे हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। वो हेल्प कर रहे दिन रात। नहीं तो कहाँ से हम इस तरह के विंग बना पाएंगे? आप सोच रहे हैं हम चेन्नई में रह के पूरे 36 स्टेट को हम बना पाएंगे? इतना आसान है? बट अभी आसान लगने लगा है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि फाउंडर प्रेसिडेंट का एक सोच था और नेशनल बॉडी का एक सोच था, वो उन्होंने हमारे सामने रखा है। 2 साल लगी इस सोच को पेपर में बदलने के लिए। अब जब काम करने वाली बारी आई तो अभी हम पूरी तरह से उसको झोंक दिए। मतलब कि इन दिस ड्राइव आई एम 100% इन्वॉल्व। आई एम कॉन्फिडेंट दैट इट्स गोइंग टू बी ए revolution, sports revolution in India. I am confident and definitely it's going to happen. हमारे जो आगे का पीढ़ी है वो बताने वाले हैं, जो हम कर जाएंगे कि यार कुछ तो हुआ था उस टाइम पे, जिसके वजह से आज इंडिया का जो स्पोर्ट्स है वो सही सलामत है। गलत हो जाता है लेकिन सुधारने के लिए खाली बोलने से तो नहीं होगा, सुधर जाएगा ना। यार फलाना चीज़ नहीं है, ये तो नहीं है यार, ऐसे नहीं कर सकते यार, ये प्रॉब्लम है यार, ये इससे नहीं है। सल्यूशन ढूंढिए। सल्यूशन नहीं मिल रहा है, अपने लीडर से बात करिए और काम को लेके जाइए, आगे लेके जाइए। ऐसा एक हम फोर्स बिल्ड करें जो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। बहुत सारे प्लानिंग हमने किया हुआ है और ये बखूबी आएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपने सुना होगा डॉक्टर प्रेम शंकर शुक्ला को, हमारे वेटरन्स इंडिया का सॉन्ग लिखा उन्होंने पढ़ के अभी सुनाया, कितना पावरफुली, कितना एज्ड वेटरन ऑफ इंडियन एयरफोर्स स्पीकिंग सो लाउडली, सो प्राउडली। एंड क्यों इनका एनर्जी है? क्योंकि वो पूरी एनर्जी दे रखे हैं वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स विंग को। वो चाहते हैं दिल से कि देश में कुछ हो। हम चाहते हैं कि आप हर आदमी, हर एक आदमी इस चीज़ में आप जुड़े, इस मुहिम में आप जुड़े और करे, दिल से करे काम। हम आपके साथ हैं। कोई भी किसी भी चीज़ में आप रुक रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। आइए हम बनाएंगे वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स विंग। स्पोर्ट्स विंग की मान्यता की बात हो, हमने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को अपनी मान्यता की बात रखी है। उन्होंने उन्होंने बोला है, उन्होंने सही बोला है, उन्होंने बोला है कि आपने पेपर में बनाए, अभी आप एक्शन में दिखाइए, हम आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है। तो इसमें गलत बात क्या है? हम करेंगे ना। अभी जैसे कोरोना ओपनिंग होता है, जब हम करने लगेंगे तो हर एक आदमी को दिखने लगेगा इतनी बड़ी बॉडी इनके आईओए के पास भी नहीं होगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास भी नहीं होगा। जो बॉडी हम तैयार करेंगे वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास भी नहीं होगा। इतनी बड़ी बॉडी हम तैयार कर रहे हैं और वो हम ग्रास रूट लेवल में, ब्लॉक लेवल से लेकर तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्दी विद इन 3 to 4 months यू विल सी ए मेगा रिवोल्यूशन एंड वी आर गोइंग टू कॉल ए नेशनल कन्वेंशन ऑन स्पोर्ट्स very soon. All the states people will be coming to national headquarter as per the direction of founder president Mr. Binay Kumar Mishra. We are going to have a national convention very soon by December, जिसमें पूरे स्पोर्ट्समैन जो हमारे स्पोर्ट्स से जिनको दिया गया है, पूरे देश में जिनको दिया गया है अपॉइंटमेंट, वो सारे दिल्ली आएंगे। दिल्ली चलो और हम अपनी ताकत डिफेंस मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्टर को दिखाएंगे कि ये लोग हैं जो आपके लिए बैठे हुए हैं, ये लोग हैं जो करने के लिए तैयार है, ये लोग हैं जो राष्ट्र भक्ति से खेल को
खेल से राष्ट्रभक्ति को शक्ति प्रदान करेंगे, ये लोग हैं वो, और ये हम करने वाले हैं। कल हमारे प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने कल 1 घंटे की हमारे रक्षा मंत्री के साथ चर्चा की है, जिस लेटर को मैंने ड्राफ्टिंग की है और लेटर मैंने आपके सामने रखा है ग्रुप में। वो लेके उनको गए पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने माना और उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया। डेफिनेटली हम इसको करेंगे, इसलिए हम आपको आज बता रहे हैं। ये बड़ी खुशखबरी है और सबसे बड़ी बात है कि ये इस समय पर आया है जब हमारा नवरात्रि चल रहा है। इस समय पर हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट को भी अपॉइंटमेंट मिला है, वो बड़े खुशी से जा रहे थे। और जब रास्ते में जा रहे थे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, लंका जी बोलिए, आज तो हम बड़े उससे जा रहे हैं, बड़े आस से जा रहे हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट भी दिया है, क्या वो करेंगे? मेरी जवाब एक थी, सर दिल से बनाया है, दिल से लिखा है और दिल तक पहुंचना चाहिए। अगर वो देश के लिए चाहते होंगे तो उनके दिल तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो कुछ और रास्ता देखेंगे। मेरी जवाब यही थी उनको। और जब मैं आज उनको फ़ोन किया, वो बड़े बड़े खुश थे और उन्होंने बोला कि हमने हमने उसके ऊपर बहुत, और जो रक्षा मंत्री ने, आप देखिए आपके प्रेसिडेंट ऐसे हैं, रक्षा मंत्री उनको 1 घंटे की टाइम देते हैं बात करने के लिए। ऐसे प्रेसिडेंट को आप सोचना चाहिए आपको एक बार, मतलब कि रक्षा मंत्री के पास इतना टाइम कहाँ होता कि 1 घंटे के लिए वो चर्चा कर सके किसी के साथ। तो ये यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज बीइंग टेकन वेरी सीरियसली बिकॉज वी आर बिल्डिंग इट वेरी सीरियसली। तो आप उस लेटर को पढ़े, हमने अपनी चीज़ें, हमारा एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, हम 2 चीज़ों से, जो हमारा पॉइंट है उस लेटर में लिखा हुआ है, हमने उसको रखा है। हमने ये बोला है कि हमारा डिफेंस और पैरामिलिट्री का हमें वेटरन्स विंग की तरह ये अप्रूवल मिले, इन बच्चों को मान्यता मिले जो अच्छे करेंगे देश के लिए। उसको जो है 3 सर्विसेज और पैरामिलिट्री, इनको अपनी ट्रेनिंग में शामिल करे और अपना पाराफर्निया के हिसाब से इनको जॉब में ऑब्जर्व करे फ्यूचर में। उनको एश्योरिटी दे, कैरियर गाइडेंस का एश्योरिटी दे। हमें कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का एफिलिएशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डिफेंस एंड पैरामिलिट्री का चाहिए। हम वेटरन्स हैं, हम ऐसे बनाएंगे। हमने उनको बखूबी 250 लोगों का लिस्ट दिया है। हमने बोला किसी से भी आप फ़ोन कर लीजिए, उनके बायोडाटा मांग लीजिए और देख लीजिए वो कैसे लोग हैं। इन लोगों को हमने वेटरन्स इंडिया में शामिल किया है और उनके उन सारे लोगों को जिनको हमने स्टेट और नेशनल में लिया है, उन सारे लोगों का फ़ोन नंबर के साथ हमने डिफेंस मिनिस्टर को सबमिट कर दिया है कि ऐसे लोगों को हमने लिया है कि जिन्होंने खेला है देश के लिए, जिन्होंने मेडल दिया है देश के लिए। तो आज वो लोग जब चुनेंगे तो बेस्ट से बेस्ट लोगों को चुनेंगे। तो सिर्फ ये करने की बात है कि आपको इसकी मान्यता देने की बात है, क्योंकि जब तक हमारे बच्चों को कोई कैरियर ग्राफ नहीं मिलेगा तब तक जो है बच्चे हमारे पास क्यों आएंगे खेलने। तो इस बात पे डिफेंस मिनिस्टर जो है ग्रीन सिग्नल दिए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है सुन के। हमारे प्रेसिडेंट ने हमें बोला है तो हम आपको कह रहे हैं, और वो लेटर भी हमने आपके सामने रखा है ग्रुप में। तो लेट्स गो हैड विथ न्यू एनर्जी दैट आवर्स इज गोइंग टू बी ए रिवोल्यूशन। एक बार अगर डिफेंस और पैरामिलिट्री का अप्रूवल हमें मिल जाता है, उसके बाद हमें कोई नहीं रोक सकता है। इंडिया में कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी रोक नहीं सकता। बिकॉज वाई वाई बिकॉज बच्चे आएंगे ना हमारे पास खेलने, तो फिर बच्चे आएंगे खेलने के लिए। अच्छा सा अच्छा बच्चे जब हमारे पास आएंगे तो उनको जब वो हम आर्मी और नेवी एयरफोर्स को सरेंडर कर देंगे, वही बच्चे तो जाएंगे ओलंपिक खेलने के लिए। क्योंकि बच्चे आना जरूरी है हमारे पास खेलने के लिए। अच्छे से अच्छा, खराब से खराब, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारा जो है, हमारा क्या कि स्वस्थ भारत भी एक नारा है। तो कहने का मतलब है कि अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्समैन भी आए, बुरे से बुरे स्पोर्ट्समैन भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रास रूट लेवल की स्पोर्ट्स है, सबकी जो है टेस्ट हो। आप ये समझ लीजिए कि बहुत सोच से इसको बनाया गया है। उसके बाद हम सारे फेडरेशन से उसके एफिलिएशन लेंगे,
धीरे धीरे हम जब काम करने लगेंगे, अपने आप हर आदमी, हर फेडरेशन हमें एफिलिएशन देता रहेगा, क्योंकि हम किसी के अगेंस्ट में नहीं है। हम तो देश के लिए कर रहे हैं ना। हमारा कोई जात नहीं, पात नहीं, फेडरेशन नहीं, कुछ नहीं है। हम आपको बता रहे हैं जो सही फेडरेशन होता है इंडिया में, उसमें सिर्फ 20% लोग खेलते हैं। 80% लोग खेलते कहाँ हैं? वो बच्चे कहाँ हैं जिनको नॉन एफिलिएटेड सर्टिफिकेट्स, जो नो कुछ भी नहीं उनके जिंदगी में, उनको मिलेगा फोरम, उनको मिलेगा ओलंपिक में रिप्रेजेंट, उनको मिलेगा कंपटीशन देने के लिए उस 20% बच्चों के साथ। क्यों ना 100% बच्चे खेल नहीं सकते इंडिया में? क्यों एक फेडरेशन नहीं है? उसको तो कोई सुधार नहीं सकता। बिकॉज आप बोलो तो बोलेगे वो तो मुश्किल है। तो मुश्किल है तो इसलिए तो वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स विंग लेके आया है। करिए इसको सपोर्ट, करिए इसको। तो 80% का 100% बच्चे खेलेंगे। हमारे पास कोई जात नहीं। मैं आज भी बता रहा हूं मेरी सारे ऑफिस बियरर्स को, प्लीज अगर कोई किसी फेडरेशन से आप है, अगर आप किसी फेडरेशन के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको कोई फेडरेशन से बहुत प्यार है, तो हमारे पास कोई फेडरेशनिज्म नहीं है। हम हर बच्चे को लेंगे, एक ही क्वालिफिकेशन, भारतीयता। The athlete should be a Indian, nothing else is the qualification. We will open the हमारे साइट में अभी एथलेट रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। जो भी रजिस्टर करेगा, वी विल नॉट आस्क हिम which फेडरेशन यू आर, you belong to फलाना फेडरेशन और नॉट, you are a Indian, you can play veterans India sports wing. तो we will send them ID cards. इस तरह के हमने प्लान किया है कि 5 लाख बच्चों को रजिस्टर करेंगे। फिर हम दिखाएंगे कि हमारा ताकत क्या है। पूरे इंडिया का 5 लाख बच्चों को 21 गेमों में हम जोड़ेंगे। पहले तो पहला काम यही है। देख लीजिए ना, इट्स वेरी इजी। 21 स्पोर्ट्स, 36 स्टेट्स, ईच स्पोर्ट्स 1000 पीपल, 1000 स्टूडेंट्स इन ईच स्टेट, 21,000 इंटू 36। देख लीजिए कितना आता है, मुझे बताइएगा। उतने बच्चे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया का रजिस्टर होने के लिए हमारे साइट में, और उनको हम बखूबी पूरे पूरे क्लीन स्पोर्ट्स देंगे। क्लीन स्पोर्ट्स, इसीलिए मैंने बोला अपने ऑफिस बियरर्स को दिमाग से क्लियर कर दीजिए, सिर्फ देश के लिए आप जज करेंगे बच्चों को, ना कोई महाराष्ट्र के लिए, ना कोई तमिलनाडु के लिए, ना कोई उड़ीसा के लिए। जज करेंगे तो इंडिया के लिए जज करेंगे, किसी राज्य के लिए नहीं, कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, किसी प्रांत के लिए नहीं, कि मेरा बच्चा है, ना किसी का घर के लिए। अगर बच्चा अच्छा है वही जाएगा, तब जाके इंडिया के स्पोर्ट सुधर पाएगा, तब जाके इंडिया 130 करोड़ की जनता ना इंडिया का वर्ल्ड की ओलंपिक्स को भी हिला सकता है। क्योंकि जब 20% की बच्चे ही सिर्फ जा रहे हैं, उसमें भी इतना धांधलीबाजी है, तो कैसे पहुंचेंगे वो लोग जाके वर्ल्ड के फोरम में? कैसे पहुंच जाएंगे? उसमें भी आप उसमें सोचेंगे मेरा फलाना प्रांत का है, मैं तो तमिलनाडु का हूं, और तमिलनाडु में ये फलाना फेडरेशन का है, मैं तो फलाना फेडरेशन का हूं। भाई साहब, मैं तो इंडिया का फलाना फेडरेशन से हूं, ये बच्चा उस फेडरेशन, इसका नाम, इसका मार्क काट दो। भाई साहब, इस सोच के ना कभी देश नहीं बनती है। ये देश का सोच ही नहीं है, ये कोई पेट्रियोटिज्म का सोच नहीं है। दिमाग से गंदगी निकालो अगर देश को बनाना है। सिर्फ ये मत बोलो कि जय हिंद। जय हिंद आपके ब्लड और फ्लैश में जाना चाहिए। जब करो ना, जब करने को कोशिश करो, तो वहां देश सामने आना चाहिए। अगर गलत कर रहे हो तो देश सामने आना चाहिए, क्योंकि सोच तो रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो, बोल तो रहे हो, काम पे नहीं है, तो कैसे होगा? गीता में भी लिखा है कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कैसे होगा? और काम नहीं करोगे तो कैसे होगा? काम करो, फलों की भरोसा, फलो फल फल की बारी में सोचो ही ना, मैं दूंगा ना, भगवान ने तो ये बोला है। और अगर उससे थोड़ा आगे भी चले जाए, भाई साहब क्या लेके आए थे जो, वही भी तो गीता में लिखा है, क्या लेके आए थे जो क्या लेके जाओगे? कुछ ऐसा काम कर जाओ ना जो दुनिया में लोग याद रखे आपको। ऐसा लाइन खींच जाओ कि यार पूरे वर्ल्ड आपको याद रखे कि यार ये बना गए थे। ये नहीं है कि सिर्फ
ये कोई श्री विनय मिश्रा के अंदर ही ये क्वालिटी है, ऐसा नहीं है। हर एक आदमी का अंदर, आपके अंदर ये क्वालिटी है। प्रॉब्लम इज फियर। डर नाम का चीज को दिल से निकाल दीजिए, सब हो जाएगा। डर, डर एक ऐसा चीज है कि आपको जिंदा रहते हुए भी मार देगा। फियर बहुत अच्छा है अगर वो गुड फियर हो, अगर वो भगवान के लिए हो, अपने पिता माता के लिए हो, वो बहुत अच्छा है। लेकिन बैड फियर इज ऑलवेज बैड। वो कुछ करने ही नहीं देगा आपको जिंदगी में। वो देखिए ना, जवान जो सरहद पर खड़ा है, उसका गुड फियर है टू हिज कमांडर, और बाकी वो किसी को नहीं सुनता है। कोई डर और नहीं है उसको। देश को डरता है, देश के लिए करता है, देश के लिए मरता है, कर देता है। आप जब आप बोल रहे हो नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, राष्ट्रवाद, ये सब चीजें करते हुए आप काम अगर ना करो, तो आप देश के लिए अगर 15 मिनट भी नहीं है आपको देने के लिए, तो हाउ कैन यू दे से दैट आई एम ए नेशनलिस्ट पर्सन, आई एम ए पेट्रियोटिक पर्सन? क्या कर क्या रहे हैं आप फलाना गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, फलाना आदमी को बोल रहे हैं, फलाना फेडरेशन। व्हाट यू हैव डन फॉर कंट्री? ये मत पूछो कि कंट्री ने आपको क्या दिया, आपने क्या दिया है। जाने से पहले दोस्तों कुछ दे जाओ, कुछ दे जाओ, कुछ छोड़ जाओ। ये तो पता नहीं है कब निकलना है, बट निकलने से पहले कुछ जरूर करके जाना है। ये बहुत ज़रूरी है। इसी रास्ते पे मैं चल दिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस बियरर सारे मेरे साथ रहे, मेरे वेटरन्स इंडिया के दोस्त मेरे साथ सारे रहे। लेट अस वर्क फॉर द कंट्री, लेट अस गेट टुगेदर। नॉट दैट ओनली श्री विनय मिश्रा जी काम करेंगे। विनय मिश्रा काम करने से ही काम होगा, हमारा प्रेसिडेंट काम करेंगे तभी जाके काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। करके देखो ना, करके एक बार देखो तो दिल में सुकून आएगा, कुछ तो किया। ये मत सोचो कि मुझे विनय मिश्रा थपथपाएगा, मुझे कोई डॉक्टर चंद्रशेखर राय थपथपाएगा, कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ओपी तिवारी साहब थपथपाएंगे, ऐसा नहीं है। या कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब मुझे थपथपाएंगे, नहीं नहीं। खुद को थपथपाइए, ऑल इज वेल। अच्छा काम कर रहे हैं तो वो ताकत होगा आपके अंदर में। कई लोग तो मेरा माथापाची कर रखे हैं, अरे ऐसा नहीं होगा भाई, ये तो एसोसिएशन ऐसे करने नहीं देगा भाई, ये तो इंडिया करने। भाई साहब आपको तकलीफ क्या है? आना तो वेटरन्स इंडिया में आओ, नहीं आना तो मत आओ। ये तो होगा, मैंने उनको बोल दिया क्लियरली। तो आप, आपके साथ भी होगा, आपका बिना भी होगा। आप रहो ना रहो, आपकी मर्जी है। इफ यू वांट टू कम यू कम। हमने आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन रख लिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन का सौगंध खा के कहते हैं कि ये होगा। और आपको लगता है नहीं होगा तो मत आओ, अगर लगता है होगा तो आ जाओ। अरे भाई साहब हमारा दिमाग काहे खा रखे हो? क्योंकि हम है एड़ा आदमी, जो सोच लिए तो एक बेल की तरह चलेंगे, और दोनों आंखों के साइड में ना दो फट्टा बांध लेंगे। जब हम पर्वत चढ़ते हैं, जब हम पर्वत में किसी बेल को लेके जाते हैं या किसी खच्चर को लेके जाते हैं, उसके दोनों आंखें के साइड में ना हम फट्टा बांध देते हैं कि उसको सिर्फ रास्ता दिखाई दे, सिर्फ उसको मंजिल दिखाई दे, साइड का कुछ ना दिखाई दे, दोनों साइड में क्या हो रहा है ना दिखाई दे। भाई यही तो हम कह रहे हैं, अगर हमने किसी रास्ते में चल दिए हैं तो दोनों फट्टे बांध लिए हमने। आप भी बांध लो, अपने दोनों साइड में फट्टे बांध लो, चलना तो चल दो। तो एक दिन आपको, आप भी पूजे जाओगे सुभाष बोस की तरह, गांधी जी की तरह। क्योंकि वो भी उसी तरह से चल दिए थे। उनको ये नहीं पता था, उनको सिर्फ ये पता था कि डेस्टिनेशन क्या है, रास्ता नहीं पता था, लेकिन चल दिए थे। उनको पता था कि डेस्टिनेशन जरूर हमारा यही है। बोले आपके लक्ष्य, अगर सिद्धांत, आपका जो लक्ष्य है अगर आपको क्लियर है, इफ यू नो वेयर इज द डेस्टिनेशन, देन व्हाट इज द फियर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? दोस्तों ये बहुत गहराई से सोचने की बात है। बहुत काम हो रहा है। हमने पूरे सारे स्टेट में हम फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं। फंड रेजिंग का हम कमेटी बना लिए हैं, और फंड रेजिंग कमेटी के चेयरमैन जो है, सीनियर एयर वाइस सीनियर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एयर मार्शल ओपी तिवारी सर रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे उसमें। और ऐसे तो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट तो ऑल इन ऑल है,
बट हमने एक कमेटी बना लिया है, हमने एक कंपनी का लिस्ट तैयार कर लिए हैं जिनके कंपनी के साथ हमारे ऑफिस बियरर की संबंध है। और हम आज भी कह रहे हैं आपको, किसी कंपनी की, बड़े कंपनी के साथ आपके लोगों के साथ आपके अच्छी संबंध है तो हमारे कमेटी के साथ संपर्क करिए। ये हम आपको गारंटी देते हैं, हमारा कमेटी जाएगा, उस कंपनी को प्रेजेंटेशन करेगा, उसकी सीएसआर फंडिंग्स रिलीज कराएगा वेटरन्स इंडिया के लिए, और तब फंड आएगा। एक सिस्टम तैयार करिए और एक्सपेंशन करिए। वेटरन्स इंडिया सोच को दूर दूर तक पहुंचाइए। खुद की सोच नहीं, अपनी सोच नहीं, वेटरन्स इंडिया का सोच। समूहों का ताकत बहुत ज्यादा है दोस्तों, अकेला का ताकत नहीं है। लेट्स बी वन एंड लेट्स वर्क फॉर वेटरन्स इंडिया, नॉट फॉर द सेल्फ। डेफिनेटली वन डे ये क्रांति होगा, क्रांति हो चुका है, बट अगला 6 महीने में पूरे भारत वर्ष में चप्पा चप्पा लोगों को पता चलना चाहिए वेटरन्स इंडिया क्या है। कोरोना खोलते ही सर आप देखना, जिस लोगों को मैं कैद करके रखा हूं, जो लोग अभी कैद हो रखे हैं कोरोना की वजह से, ये सारे क्रांतिकारी स्पोर्ट्समैन हैं। ये हिला देंगे इंडिया को, ये मेरी गारंटी है आपको। और आप सभी जो मेरे भाई है वेटरन्स इंडिया के मेन विंग में, कभी ये ना सोचे कि ये स्पोर्ट्स विंग कुछ अलग बन रहा है, ऐसा मत सोचना कभी भी। भाई साहब आपको सैल्यूट है, आप लोग मेरा वेटरन्स भाई है। और आप अगर एक चेयर भी पड़ा होगा उस स्टेट में, स्टेज के ऊपर, तो भाई वो प्रेसिडेंट एडवाइजर पैटर्न का, स्टेट पैटर्न का पहला होगा, इतना याद रखिएगा। तो प्लीज बिल्ड द विंग लाइक योर विंग, डू नॉट डिस्टर्ब द विंग, ओनली थिंग। उनको सिर्फ अभी नया है वो लोग, उनको पता नहीं, आप लोग बखूबी पुराने हो। पहले नए बच्चों को बनाना होता है, उसको दूसरे को टच करने नहीं देना होता है, क्योंकि अगर टच करने देंगे तो उसको डिजीज हो जाएगा छोटे बच्चे को। तो जब बच्चा बन जाएगा, हट्टा कट्टा हो जाएगा, फिर हम आपको सौंप देंगे भाई। इतना मत डाउट रखिए, हम अपने लिए कुछ भी नहीं बना रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा खाना पीना मिल जाए तो मोर देन सफिशिएंट है। तो दोस्तों कोई डाउट मत रखिए, आप ये मत सोचिए जब मैं स्पोर्ट्स विंग बोल रहा हूं मेन विंग नहीं हूं करके। स्पोर्ट्स विंग इज ए पार्ट ऑफ मेन विंग। मेन विंग ऑलवेज इज ए मेन विंग, बाप बाप है और रहेगा। कभी नहीं सोचना, ये दिमाग में लाना ही नहीं है, आपको बाप की तरह बिहेव करना है। आप वो, और वहां पे जब बाप की तरह बिहेव करना है, वहां पे ईगो की स्थान नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे लेक्चर में कि हमेशा दोस्तों याद रखिए, संगठन जो है वो हमसे चलता है, मैं से नहीं चलता है। इसके लिए सबसे बड़ा चीज जो है ZEZ, ZEZ, जीरो ईगो जोन। जीरो ईगो जोन, ईगो को अपना जीरो करना पड़ेगा, तब जाके जो है हर काम आसान है, आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल जो ZEZ है, जो जीरो ईगो जोन है, अगर आपने में उतार लिया तो कोई चीज मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। तो दोस्तों बहुत टाइम हो चुका है, और मैं आपको, कई चीज़ें हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे जो स्पोर्ट्स भाई लोग हैं जब इसको सुने, तो हम चाहते हैं कि मेरी ये अर्ज है कि यार अगला, ये जो अक्टूबर का एंड तक हम इस स्पोर्ट्स स्विंग का एक्सपेंशन के काम खत्म करना चाहिए। अगर रियली मेरे साथ आप लोग हो, हर आदमी, अगर मेरे पास 250 लोग हैं, अगर हर आदमी 1 घंटा भी काम करे एक दिन में, तो मुझे नहीं लगता कि हम अगला 15 दिन में पूरा इंडिया का स्पोर्ट्स स्विंग हमारा कंप्लीट तैयार हो जाएगा, और फिर हम आगे का तय करेंगे। मैंने पूरे कंपटीशन डॉक्यूमेंट बना लिया हमने, जो हमारे श्री समीक्षा नंदन दास है, बहुत ही क्वालिफाइड सीए है, और ही वाज ट्रेजरर ऑफ आर्चरी फेडरेशन। और अब हमारे पूरे जो है वो पूरे 100% टाइम डॉक्टर प्रेम शंकर शुक्ला के साथ, डॉक्टर क्या बोलते हैं, श्री RD झा सर,
और जो समीक्षा नंदन दास है, ये सब नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी है, ये लोग पूरी दिन, हर दिन दे रहे हैं, मतलब 24 घंटे दे रहे हैं हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे जब दे रहे हैं तो मुझे हैरान होता है कि कुछ भी नहीं है उनका सेल्फ, बट द डॉक्यूमेंट्स के बाद डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। और मुझे इतना कहते हुए इतना अच्छा लग रहा है कि भाई हमारा स्पोर्ट्स विंग का रियली जो हमने ड्रीम देखा था वो साकार होते जा रहा है। श्री विनय सर जो है हमारे, जय हिंद सर, यू आर वेलकम टू द लाइव प्रोग्राम। एंड हमारे फाउंडर जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं हमें। हम ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों, दिल से लगिए। अब ये ना हो कि आप पीछे छूट जाए और वेटरन्स इंडिया आगे चले जाए। ये अभी ये क्रांति हो चुका है, ये रुकने वाला नहीं है। अब आप रहेंगे, आप करेंगे, आप लिस्ट में आएंगे नहीं आएंगे, ये आपके ऊपर है। हमने अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स का ड्राफ्ट बनाया है जो अभी हम प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं। सारे ऑफिस बियर्स के अंदर में जो बेस्ट होंगे, नेशनल अवार्ड्स, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, मॉनिटरी अवार्ड्स, सब ड्राफ्टिंग किए हुए हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर चंद्रशेखर राय सर ज्वाइन किए हैं। तो जय हिंद सर, वेलकम टू द लाइव। हम चाहते हैं ये सारे सारे लोग मुझे स्टार्टअप देने में, शुरुआत में स्टार्टअप दे चुके हैं। एंड सर, मैंने ऑलरेडी, सर हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर के बारे में जो बातें हुई है वो बताया जाए। तो सर मैं आपको बताऊं कि मैंने पूरी डिटेल में इस फोरम में डिस्कस कर चुका हूं। आपने जो बात रखी है तो वो पूरी चीज़ें मैंने डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी लाइव में। तो इट्स बीइंग ऑलरेडी ए 40 मिनट्स लाइव। तो मैं ऑलरेडी इनके सामने ये चीज़ें रख चुका हूँ। तो आप जब आगे की बात जो है कि मुझे आप लोगों की 100% सहयोग चाहिए। हर एक आदमी अगर आधा घंटे भी डेली काम करेगा वेटरन्स इंडिया के लिए, ये बहुत बड़ी काम हो जाएगी। सेक्रेटरीज जो स्टेट्स के हैं, दे नीड टू वर्क very hard. They are secretaries, they are presidents. If they just sit quiet, do you think that nationalism, patriotism will really become uh, viable? Never. Can it really come to the effect? No. फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आप दिल से करिए। अगर रियली देशभक्त बनना चाहते हैं, देशभक्ति आपके अंदर जज्बा है, तो आप आइए इस मुहिम में। हर दिन कहीं मुझे तो नज़र नहीं आता, मुझे कभी फ़ोन कॉल्स नहीं आता, सर मैं आगे क्या करूं, सर मैं आगे क्या करूं। कुछ लोगों को आता है, मैं फिर बोलता रहता हूं, मैं ही बोलता रहता हूं। बट अब ऐसा हो चुका है कि एक बहुत बड़ी क्रांति आ चुका है। हम चाहते हैं कि हर एक आदमी इसमें जुड़े, हर एक आदमी टाइम दे, समय दे। कहीं रुक रहा है तो हमें कॉल करे, हमें बात करे। हम 24/7 आपके लिए है। कभी अगर हम फोन नहीं उठाए तो बताना आप। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि वेटरन्स इंडिया अगर एक सोच लेके ये आया है, ये देश में क्रांति लाएगा। और अगले 6 महीने का अंदर ये क्रांति, मतलब कि वेटरन्स इंडिया का नाम जो है घर घर में गूंजना चाहिए, गली नुक्कड़ में पता लगना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तो बिल्कुल मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस बात पे गौर करें। और मैं चाहता हूं कि अभी डॉक्टर चंद्रशेखर राय सर को मैं जोड़ूं इसमें, और वो अपना बात रखे। सर आप रिक्वेस्ट करें, इट इज़ नॉट कमिंग, योर आर्ट इज, इट इज़ नॉट शोइंग। आई कैन आर्ट एनीबडी एल्स, आई कैन आर्ट प्रेसिडेंट साहब, बट योर आर्ट ऑप्शन इज नॉट कमिंग सर। डॉक्टर चंद्रशेखर राय सर, आपके आर्ट ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। मैं देखूं क्या आपने दिया क्या रिक्वेस्ट। Sir, may how can I add you, because there is no add option in this. Now I am adding president sir.
Oh, maybe because of that you sent 10 times na sir. That's why. Maybe because of that it is not showing sir. एक बार और देखता हूँ but it is not coming. How can I add any other thing? Add viewers to be to your एक second sir. Not coming sir. Not coming. Add option is not coming for you. How can I add? Sir, add option is not come. One second, let me check, sir. एक second, sir. I think I will just check the this one. बालकृष्ण पांडे सर, विनय मिश्रा सर, के दीक्षित सर, चंद्रशेखर सर का नहीं आ रहा है. Anyone else I can add, sir? President साहब, anyone else I can add because there is no option of adding. भोलानाथ सर I can add. भोलानाथ सर पूरा सुन रहे हैं तो एक बार ऐड करते हैं. Hello, are you getting my voice? Are you getting my voice? Hello. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. I'm waiting. जय हिंद सर. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद सर, जय हिंद। सर एक्चुअली डॉक्टर साहब आना चाहते थे, लेकिन हाँ हाँ लेकिन मेरी शक्ल दिखाई देनी थी, इसलिए मैं आ गया। क्योंकि आज सर वो ऐड ऑप्शन नहीं आ रहा उनका. क्योंकि आज प्रेसिडेंट साहब ने इतने दिनों के बाद में हम लोगों से बात की थी, इसलिए हमारा लक ज्यादा सर लकी है और आपके हाथों सर आपके हाथों जुड़ गए सर। यू पीपल आर डूइंग वेरी बहुत हाँ बढ़िया। सर बोले. सर बोले. फोन कॉल आ गया था। बहुत बढ़िया, ओके सर. बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। जितना भी हम लोगों से हो सकता है, जितना भी आप चाहेंगे कि हम लोग आपकी मदद करें, उससे 2 स्टेप आगे जाकर के हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं सर। कभी थैंक भी आप वॉइस रेज कीजिए, कभी आप एक शब्द कहिए, हम लोग हमेशा आपके साथ तैयार रहेंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए सर। यहाँ कोई जनरल नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं है। अगर जो भी विंग अपना अच्छा काम करती है, सभी मिल करके उसको सपोर्ट करेंगे और आगे चल करके आपके थ्रू ही, स्पोर्ट्स विंग के थ्रू ही जो है बाकी लोगों का भी नैया पार लग जाएगा। नाम तो होना वेटरन्स बिल्कुल इंडिया का सर. ही है ना। नाम तो बिल्कुल होना सर. वेटरन्स इंडिया का, चाहे विंग कोई भी होने दो। सब तो हमारे भाई हैं, बिल्कुल सब सर. तो हम ही हैं, दूसरा कौन है यहाँ पे। यहाँ पे बिल्कुल सर. ऐसी ऐसी सोच को पैदा ही नहीं होने देना है कि ये दूसरी है। सब अपना ही विंग है, सब हमारे भाई हैं, सब हमारी एरिया बढ़ गई है, हमारा क्षेत्र बढ़ गया है, हमारी सोच बदल गई है। अभी हमें उसके हिसाब से काम करना है। थैंक यू वेरी मच सर। आप ट्राई कीजिए थैंक प्रेसिडेंट यू साहब को सर. जोड़ने के लिए सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर. जय थैंक हिंद यू सर। सो मच. थैंक यू. जय हिंद सर. जय हिंद. थैंक यू फॉर गोल्डन वर्ड्स. मैं अभी कोशिश करता हूँ डॉक्टर चंद्रशेखर सर का ज्वाइन करने के लिए. ओह नाइस. यस आई गॉट द ऐड ऑप्शन सर. आई एम कनेक्टिंग यू. प्लीज एक्सेप्ट इट. प्लीज एक्सेप्ट सर. आई एम. जय हिंद सर. जय हिंद. जय हिंद सर. जय हिंद. वेलकम वेलकम सर. हमारे सौभाग्य है. My 100 salute to Lanka Saab and his team. सर Team of 250 million. They are थैंक not यू. थैंक यू. 250 numbers. They are 250 millions. So थैंक I यू सर. salute थैंक यू. all of them. First of them. थैंक यू. थैंक यू सर. और थैंक यू. लंका साहब, हम लोग चूंकि रूटीन में आपके संग रहते हैं, तो कई बार हम आपकी डेप्थ को समझ नहीं पाते हैं। कल मेरा भी प्रोग्राम था मिश्रा जी के संग जाने का, पर आदरणीय मंत्री जी चाहते थे कि मिश्रा जी के संग 1 to 1 वो बात करना चाहते हैं, तो मैं नहीं जग गया। और स्पोर्ट्स विंग को लेकर के जितना उत्साहित थे रक्षा मंत्री जी, फर्स्ट टाइम वो बहुत ज़्यादा गदगद हुए, क्योंकि उन्होंने सारे पेपर्स देखे और आपका जो जितना भी आपने काम किया है पिछले कुछ समय में, और ऐसे समय में काम किया जिस समय लॉकडाउन था, जिस समय बिना मास्क के आदमी निकल नहीं सकता, मैक्सिमम टाइम तो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। ऐसे टाइम में आपने इतना अच्छा काम किया, इसके लिए पूरे देश की तरफ से आपको सैल्यूट है। मैं लंका साहब
आपको बहुत एडमायर करता हूँ इस बात के लिए। और जिस तरह से आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने सपोर्ट कर रहे हैं और करने की बात कही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो कमियां हमारी तरफ से रह रही हैं, जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से कहीं-कहीं हम लोग रह जा रहे हैं क्योंकि हमारे इवेंट्स नहीं हो पा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि मैं दोबारा से स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात करूँगा। एफिलिएशन वाली बात भी उन्होंने कहा है कि हम लोग मुद्दे को उठाएँगे और बहुत जल्दी जो स्पोर्ट्स का कन्वोकेशन आप बोल रहे हैं, उसमें भी माननीय राजनाथ जी अपना समर्थन दे रहे हैं और वो शामिल होंगे। और वो इतना खुश हैं वेटरन्स इंडिया के सभी काम से और स्पेशली स्पोर्ट्स के साथ में, क्योंकि स्पोर्ट्स अब दिखाई दे रहा है। आपने बहुत मेहनत करी, आपकी टीम ने बहुत मेहनत करी है और मैं अभी आपको सुन रहा था कि आप ब्लॉक लेवल तक जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के माध्यम से। आप महसूस करते हैं कि लोग फ़ोन करें कि साहब मुझे काम बताइए कहाँ है, कुछ लोगों का फ़ोन भी आता है। और ये वाक़ई ये कहना बिल्कुल जायज़ है आपका कि एक आदमी से ये पूरा काम नहीं हो सकता। लेकिन हमने लंका साहब को इस पूरे काम में एक संस्था की तरह देखा है। पूरी संस्था आप में रही है वेटरन्स इंडिया की और आपने अपने 250 हाथों से इस संगठन को बहुत मजबूती से पकड़ा है। तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और मैं मानता हूँ जो आपने बात कहा कि आने वाले समय में ये संगठन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संगठन से ज़्यादा बड़ा मजबूत होगा। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ क्योंकि इसके साथ में एक आपकी जिद है कि मुझे ये काम करना है। और दूसरी बात क्या है, आपके संग जो टीम है ना, वो सेना के वो जवान हैं, वो खिलाड़ी हैं ताइक्वांडोज़ और जो अलग-अलग स्पोर्ट्स के, जो जान देते हैं अपना देश के लिए और जो देश के लिए काम करते हैं, उसमें नहीं लगता है। तो केवल गाल बजा रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा आपके साथ में इंटरेक्शन नहीं रहता है, एज़ ए स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ। लेकिन जब भी मुझे मौका लगता है, मेरा मन करता है कि नहीं आज मुझे स्तुति वंदना करनी है लंका साहब के इनके कामों की, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि लंका साहब जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अगर मैं इस काम में भी उनके साथ नहीं रहूँगा तो बहुत पीछे रह जाऊँगा और तारीफ़ करने में करने वाले लोग भी बहुत मिल जाएँगे। तो बहुत अच्छा काम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान में अनलॉक जिस तरह से खुल रहा है, तो बाकी सब चीज़ें खेलेंगी। तो सबसे पहला सेमिनार हम लोग स्पोर्ट्स का दिल्ली में करेंगे और जैसा आपने कहा कि स्पोर्ट्स के अवार्ड का फंक्शन भी होना है, वो भी करेंगे। और स्टेट वाइज़ जो हम लोग ज़ोनल हम बात कर रहे थे कि हम लोग ज़ोन वाइज़ यहाँ कॉम्पिटिशन कराने की बात कर रहे हैं, टीम खड़ी करने की, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। मेरी तरफ से बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आपके लिए, स्पोर्ट्स विंग के लिए और सभी के लिए। बट साथ में एक बात और कहूँगा मैं आपसे, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इतना भावना में रहते हैं, तो थोड़ा-सा और कहा करें कि ये राष्ट्रभक्तों का संगठन है। स्पोर्ट्स के साथ-साथ में राष्ट्रभक्ति में हमारा क्या योगदान है, उसको भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी लोगों से जो लोग देख रहे हैं कि वेटरन्स इंडिया की जो राष्ट्रभक्ति का जो काम है, नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म में, वो हम में सब लोग को जोड़ने की ज़रूरत है। हमारा एक-एक स्पोर्ट्समैन लाखों लोगों के बराबर होता है क्योंकि कॉम्पिटिशन में वो लाखों लोगों से आगे होता है। जब वो ये बात कहता है नेशनलिज्म की, पेट्रियटिज्म की, जब वो बात करता है राष्ट्रभक्ति की, तो उसको सुनने के लिए वो लाखों लोग जो उसके पीछे खड़े हैं, वो उसकी बात को सुनते हैं। और आप ऐसे लाखों लोगों का नेतृत्व करने वाले लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने संबोधन में इस बात पर जिक्र ज़रूर किया करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं सर देता हूँ। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड जाना नहीं दूंगा आपको अभी। तो आप एक तो सर पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने मैंने राष्ट्रभक्ति और जो खेल से शक्ति जो आपने भावना लेके आए, आप ही लेके आए इसको, मैं सुन रहा था। तो इसको इसको मैं एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ, टेस्ट लेना चाहता हूँ। खाली कहने से तो सर होगा नहीं ना। तो मैंने अपनी पूरा, अगर मेरा वीडियो आप देखेंगे तो मैंने कोशिश किया है कि उनके अंदर ना वो राष्ट्रभक्ति वाला चीजें को जगाने की। मैं नहीं देख तो रहा क्या हूँ। फायदा सर, क्या फायदा है कि वो सारे बोले कि हम तो राष्ट्रभक्त है, तो व्हाट इज द प्रूफ दैट यू आर राष्ट्रभक्त? नहीं, एक तो सर ये है। मैं उन 250 लोगों में कोई कमी नहीं महसूस करता। मेरा ये कहना है
ये जो आपकी टीम है वो डाउन द लाइन जोड़ने की कोशिश करे। सब लोग यस सर, स्पोर्ट्स में नहीं हो सकते, लेकिन सब लोग सर राष्ट्र में, ये गारंटी है। बिल्कुल सही सर। दूसरा पॉइंट, 250 नहीं सर, अभी अभी 350 हो गए हैं। मैं कहता ये हूँ सिर्फ ये 250 नहीं है, ये सर 250 250 मिलियन सिर्फ है, ये सर जो 250 मिलियन है। एक सर जो एक दो जो स्पोर्ट्समैन 1 मिलियन के सर बराबर जो है। सर जो लिस्ट आपके पास है ना, वो सिर्फ स्टेट एंड नेशनल का है, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट का नहीं है आपके पास लिस्ट। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके लिए है। आपने बनवाया ये अशोक लेंका को, मैं आपको एक लाइन बताता हूं आपका। नहीं नहीं, मैं बताता हूं, पूरा सुनिए सर पहले। नहीं नहीं, मेरे सर जिंदगी में मेरे जहन में अगर कोई चीज बार बार रिपीट होता ना, तो एक तो रिपीट होता है कि मेरा मास्टर ने जो सिखाया है, हमेशा जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूं मेरा मास्टर की तस्वीर आता है। अगर मैं वेटरन्स इंडिया में काम कर रहा हूं, तो हर बार जो विनय मिश्रा साहब बोलते हैं वो रिपीट होता रहता है। आपके एक बहुत ही जबरदस्त लाइन जो मेरा दिमाग में रिपीट होता है, आज अगर नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा फिर मैं आपको। तो आपको याद होगा जब आप शुरू शुरू में मेरे साथ बात करते थे, आप बोलते थे अशोक लेंका जी, ये आपका विंग है, आपको बनाना है, आप ही सर्वे सर्वा है, यही बोलते थे ना आप। और मैं बोलता बिल्कुल था मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, मेरे बहुत डिफिकल्टी है, मैं अकेला कैसे करूंगा बोलता था। बिल्कुल सर मैंने बिल्कुल। ढूंढ लिया है लोगों को, आपके खुशी के लिए मैं बोल रहा हूं, मैंने ऐसा टीम ढूंढ लिया है। आप सर, आपको सरप्राइज, साहब वो आप नहीं सारे जानते थे आपके काम बारे वही। में, लंका साहब आप नहीं सर जानते उनको थे, पर ढूंढ लिया है, और मैं वो ये टीम। बात जानता था, मैं ये बात जानता था। आप हमेशा कहते थे कि मैं पानी में नहीं उतरूंगा, आपके बिना नहीं उतरूंगा। मैंने कहा नहीं, धक्का दिया आपको और मैं भाग गया उधर से कि आपको ही तैरना है, आपको ही लेके जाना है। याद है आपको? आप बोला कि नहीं नहीं मैं आपके मुझे बिना जाऊंगा नहीं। नहीं, जब मैं अकेला हो गया, तो मैं अपने आप सहारा ढूंढने लगा, तो बहुत सारे बढ़िया सहारा आने लगे। अब तो सर आपके पास पूरा टीम ऑफ पीपल है, दोज वांट टू वर्क फॉर वेटरन्स इंडिया। वेरी दिल्ली नाइस में ही लंका साहब, बहुत दिल्ली बहुत में ही आपके बढ़िया, साथ एक पूरी टीम है, और वो भी बहुत बढ़िया। प्रोफेशनल टीम है। प्रोफेशनल टीम है सर। वो इतना बढ़िया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मैं आपको भेज रहा हूं, फाइनेंस डॉक्यूमेंट इतना बढ़िया लंका बनाया साहब है सीएसआर फंडिंग आप फंडिंग के लिए। आपके फेस पे जो ग्लो आ रहा है ना, वो ये बता रहा है कि आपके पास अच्छी टीम है। सो मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई। अभी हम लोगों ने एक मीटिंग खत्म करी है। अभी हमारी हाँ एक सर। इंटरनेशनल जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, वो भी थे, और हमारी टीम में जो नए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब आए हैं वो भी थे, और कर्नल शर्मा थे, आदरणीय मिश्रा जी थे। अभी पांचों लोगों ने, हम अभी 2 घंटा बहुत मैराथन मीटिंग थी और बहुत सारे डिसीजन हुए। इंटरनेशनल लेवल पे कैसे काम होना है, नेशनल लेवल पे कैसे काम होना, हम कितना आगे बढ़ गए हैं, तो आदरणीय मिश्रा जी अपने संबोधन में कहेंगे। लेकिन वो मीटिंग खत्म करने के बाद जब मैंने आपको ये देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने रिक्वेस्ट भेजा आपको कि मेरा मन है कि मैं एक बार आपसे बात करूं इस मुद्दे पर, इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि अब बड़ा मुश्किल हो गया इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना आपके संग, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट डाला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक खुशनसीबी है कि आप आए लाइव पे मेरे नहीं साथ, नहीं, दैट्स बहुत अ अच्छा ग्रेट है। थिंग। एक बार फिर से मैं आदरणीय लंका साहब आपको बधाई देता हूँ, और साथ में आपकी पूरी टीम को मैं फिर से बधाई देता हूँ। और जिस तरह से आपने अभी तक काम किया है और जिस तरह से आगे प्लान है आपका, ओलंपिक एसोसिएशन जो आपने बोला, ये बात मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता दूं, हम लोग दिल्ली में हैं और हम लोग स्पोर्ट्स विंग की बात करते हैं, ये चर्चा में है, ओलंपिक एसोसिएशन में भी चर्चा में है, फेडरेशन में भी चर्चा में है, यूनिवर्सिटी के कई सारे डायरेक्टर्स स्पोर्ट्स जो नीचे लेवल पे जानते हैं, वो लोग में भी चर्चा है कि यार ये क्या चीज हो गया, ये क्या चीज आ गया अचानक। और सबने ये कहना शुरू कर दिया कि इंडिया इज अ थ्रेट फॉर ऑल फेडरेशंस। आपको मैं बता रहा हूँ, ये मैं सच बता रहा हूँ, ये बात हम पे आए नहीं अपनी फौज लेकर के। जिस दिन फौज लेके आ गए, उस दिन हम लोग महसूस कर, हम किसी के संग लड़ना नहीं चाहते, हम लंबी लाइन खींचना चाहते हैं अपनी। हम लोग देश के उन गरीब बच्चों को जो पैसे की कमी से, जो किसी अप्रोच की कमी से स्पोर्ट्स में नहीं आ पा रहे थे,
हम उनको लेकर के आएंगे, ये हमारा मोटो है कि हम लोग उनको आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ। मिश्रा जी को ज्वाइन करा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank अगेन। you, sir. Thank थैंक you. यू। Jai Hind, sir. Thank you. Thank you. थैंक यू। अभी कैसे फाउंडर प्रेसिडेंट्स को मैं इनवाइट कर रहा हूँ क्लोजिंग एड्रेस के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। एक्चुअली पता नहीं बीच में डॉक्टर साहब बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। अ, अ, मैं जुड़ गया। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब यदि बोलना चाहते हैं तो उनको कंटिन्यू करने दीजिए। मैं थक भी गया हूँ। काफी लंबी मीटिंग और कई लोगों से बातचीत हुआ है और बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है और सभी लोग ये चाह रहे हैं कि जो वेटरन्स इंडिया की सवारी है उस पे हम बैठ जाएं। उसको नहीं बैठ पाए तो पकड़ के रखें, उसको नहीं पकड़ पाए तो जिसने पकड़ रखा है उसको पकड़ के रखें। कहीं ऐसा नहीं हो कि वेटरन्स इंडिया इतना आगे निकल जाए कि फिर हमें वेटरन्स इंडिया नाम की सवारी को पाने में या वहां तक पहुंचने में दिक्कत हो। तो मैं भी उस दौड़ में हूं कि ठीक है, वेटरन्स इंडिया नाम का सवारी हमने बनाया है, लेकिन हमें भी पकड़ के रखना ही पड़ेगा, है ना। यदि सवारी करना है तो बड़ा अच्छी बातें चल रही है। आपने सारी बात को कवर कर लिया और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर चंद्रशेखर राय को आप एक बार फिर से जोड़े, कुछ बोलना चाह रहे थे। और मैं आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं और आप जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत सबको दिख रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है। और वेटरन्स इंडिया में लोग, काम करने वाले लोग बोलते भी नहीं है, वो तो करते हैं। उस चीज को सभी लोग देख पा रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा आपसे कि एक बार डॉक्टर चंद्रशेखर राय को फिर से आप जोड़ें, वो कुछ बोल रहे थे, उनकी बात कंप्लीट हो। मेरे तरफ से जय हिंद। बाकी हमारी बातें आपने जय रख हिंद दिया, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करेंगे फिर। जय थैंक हिंद। यू सर। थैंक यू। जय थैंक हिंद। यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। आई थिंक वो एग्जिट कर चुके हैं डॉक्टर चंद्रशेखर राय सर। अभी काफ़ी देर भी हो चुकी है और डॉक्टर चंद्रशेखर सर भी है नहीं लाइव में। तो क्या सर क्लोज किया जाए? सेल वी क्लोज बिकॉज डॉक्टर चंद्रशेखर सर लाइन में नहीं है और तो फिर हम इसको वाइंड अप करें सर। तो इट वाज अभी सर वाइंड अप करें क्या सर? ओके, Jai Hind friends, and this was a wonderful session. Since Rambir Sarma sir has requested me to do the live because Prem sir was not able to come because of the internet, what you call the network problem. I got a chance, and I'm really blessed to have my Vice President and National Secretary Volanath sir, Vice President Dr. Chandrasekhar Rai sir, and founder and national president after a long time in my live, and I got a great reactions from him, and this is really wonderful. And Mr. Chinmay, welcome. You are late, but it's okay. I'm going to close the session, and Mr. Chinmay from Orissa is doing a wonderful job there. And likewise, we all assure you, all my office bearers, all my Veterans India friends, I assure you, we will do day and night. We will do 24/7 the work for Veterans India, work for nation building through Veterans India. And I will be the front runner for it. I promise you that I will remain as a front runner, and you decide whether you are going to be front runner for it. It's your choice. Time has come to serve the nation, directly or indirectly. That's not a point. Point is, are you ready to lead? If you're ready to lead, we are there with you. Some point of time, our voice will match, our life will match, our thinking will match. We'll change the India, we'll change the thoughts of India, we'll change the sports. Through sports, we'll build the India. That is what is my thought and thought for today. If you are with me, if you are with me, say Jai Hind and Jai Bharat and start thinking to lead from the front, not from the back. Thank you. Jai Hind. Jai Veterans India.